तो आज की वीडियो में आपको कैबिन क्रू के बारे में एक ऐसा चीज बताने वाली हूँ, लाइक द ओवरऑल फ्लाइंग इम्पैक्ट फॉर एन इंडिविजुअल। मतलब मुझे फ्लाइंग करके 3 साल हो चुके हैं और क्या क्या हेल्थ इश्यूज मुझे या मेरे कोई भी फ्लाइंग क्रू को आ रहे हैं, स्पेशली फॉर फीमेल क्रू। And the purpose of this video is not to discourage you guys, because before you even choose such job, I want you guys to know the impact which you will be facing in your near future. Flying Institute is actually not required to become a cabin crew, and if एक कैबिन क्रू की जॉब फिक्स जॉब नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आप 9 to 5 करोगे या नहीं, बट लेकिन ये ज़रूर याद रखना, आपकी टाइमिंग की शिफ्ट बिल्कुल भी फिक्स नहीं होगी। ऐसे नहीं हो रहा कि आप एक महीने डे शिफ्ट कर रहे हो तो अगले महीने आप मॉर्निंग शिफ्ट करोगे या फिर नाइट शिफ्ट करोगे। आप एक महीने में इतनी अलग अलग ऑफ टाइमिंग पे शिफ्ट कर रहे होते हो, जैसे कि कल अगर आप 3 बजे जा रहे हो सुबह के, तो आप नेक्स्ट डे रात में भी जा सकते हो या फिर दोपहर में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। ऐसा भी नहीं है कि फ्लाइट के बाद आपको 2-3 दिन का रेस्ट मिल जाता है। आपको कभी कभार मिनिमम रेस्ट पे भी फ्लाइट मिल सकती है। मतलब आपने आज अपनी ड्यूटी कंप्लीट की और आपको ठीक 12 घंटे का रेस्ट होने के बाद आपकी अगली ड्यूटी फिर से शेड्यूल है। और ऐसा भी है कि आपको शेड्यूल फ्लाइट्स ही मिलेंगे, इट्स नॉट फिक्स। इफ यू हैव standby or home standby, you may get pull out for other flights as well. So your timings are never fixed, even if you have a roster release for a month. Most of the crew have faced PCOD, PCOS, migraines, sinus because of cabin pressure and whatsoever, and lack of sleep. Hormonal imbalance is become very common after you have started to fly. सो हम फेस्टिवल पे भी घर नहीं जा सकते। हमारा वीक ऑफ डिपेंड करता है कि हमने 10 दिन के अंदर कब वीक ऑफ दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फेस्टिवल की बात करेंगे तो फेस्टिवल पे भी आपको ऑफ नहीं मिलता है। ट्रैवल तो मैं करती हूँ, बट ऑल्सो ये भी रियलिटी है कि इतनी सारी मेमोरीज मैं अकेले बना रही हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन द होटल आई एम जस्ट अलोन, देयर इज़ नोबडी विथ मी, एंड आई जस्ट डोंट इवन फील टू स्टेप आउट अलोन एंड एक्सप्लोर सच प्लेसेस। एंड ऑल्सो इतनी बॉडी टायर्ड होती है कि फ्लाइट करके अगर नए शहर में मुझे लेवर मिल भी जाए तो आई प्रिफर स्लीपिंग, because I again have a flight to operate back to my base or some other pattern whatsoever is scheduled. So yeah, this is also one of the impacts. In males, stress hormones imbalance हो जाते हैं, low energy, hair thinning, which is actually common. On daily basis I fly with different set of crew, so I make sure I ask them like what all impact are they facing. Cervical pain, back pain because of standing for a long time, or because of the cabin pressure, and sometimes the aircraft is not in a proper balance. It might be just climbing or it might be just descending, and if we are standing in the cabin during this time, we do get back pain. Every landing and takeoff is not smooth. I want you guys to understand that every takeoff and landing is never going to be smooth. It can be harsh landing, which can also impact your back. Even if we are sitting properly in the brace position, sometimes it is very hard for us to even, manage and balance ourselves in at just one portion, which can cause us back pain, and it can be very very dangerous. Another very important thing is high altitude पे थोड़ा ज़्यादा cosmic radiation होता है as compared to ground. It is रेगुलेटेड एंड विद इन अ सेफ लिमिट, बट अगर आप 20 या 25 साल फ्लाई करें तो एक्सपोजर एक्यूमुलेट होता है। इसलिए एयरलाइन रेगुलर मेडिकेशन चेक करवाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए और आपकी एक ही बार मेडिकल्स होती है, उसके बाद आप जस्ट फ्लाई कर रहे होते हैं। नहीं, सबको पता है कि फ्लाइंग के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ने वाला है फिजिकल हेल्थ पे। तो एवरी टाइम an airline makes sure that you at least in 5 years you go for an entire body mass medical check and get your medicals and all the tests done, and it is also again submitted back to the airline, and they will analyze it with the company doctor, and they will again mark you if you're fit to fly or not. Because of irregulation you might face a lot of things which I've already told you, that hormonal imbalance हो सकता है, डिहाइड्रेशन से बहुत कुछ हो सकता है बॉडी में, आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। सो ये सब टेस्ट फिर से होता है, आपका सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी सब कुछ होगा हर 5 साल के फ्लाइंग पे। तो you have to be very careful and you have to take care of your health every day, not only in flights but also whenever you are at home. अब मैं कैंसिल फ्लाइट और बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, न्यूज़ पे ऑलरेडी ये सब आ चुका है कि एयर स्पेस बंद हो गया है। तो हम मेरी भी ऑलमोस्ट 2 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है और मैं घर पे ही हूँ।
ना मैं अपने घर जा पा रही हूँ ना कहीं पे, बिकॉज मैं अभी भी अपने बेस पे प्रेजेंट हूँ। अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो मुझे दूसरी फ्लाइट के लिए भी बुलाया जा सकता है। And now the most important thing, your flying institute, like the favorite topic of every future cabin crew aspirants. Flying institute, guys, my suggestion is do not join a flying institute. An airline do not want you to spend lack of money and come for the interview. अगर एयरलाइन को फ्लाइंग इंस्टीट्यूट वाले ही बच्चे चाहिए तो वो ऑब्वियसली इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करेंगे, वो सीधा उनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को हमारे एयरलाइन में भेज दो। ऐसे कभी नहीं होता। एयरलाइंस हैव अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया, हाइट, बीएमआई स्कार्स एंड बहुत सारी चीजें हैं। वो आपका कॉन्फिडेंस, द वे यू स्पीक, आपकी इंग्लिश, आपकी हिंदी, सब कुछ, सब बेसिस पे आपको जज करेंगे। सो डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय cabin crew flying institute, because they will not just accept you if you're short heighted or if you're fat or if you're very thin. They will just accept you just because they want to make profit, and in turn it feels like they are selling career, which I personally do not suggest. So my suggestion is, you are very grown up now, and this generation is like already very ahead in terms of technology and AI intelligence. So please use chat gpt, browse, follow all the airlines which you want to work with, and they will always post in the official website if they are hiring. They also mention the hiring criteria and whatsoever the venue is going to be with the date and timing. So do not get influenced by this फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, बिकॉज ये लोग बस यही बताएंगे कि ग्लैमरस जॉब है, बस इंटरनेशनल फ्लाई करोगे, डोमेस्टिक फ्लाई करोगे आप, ये इंडिया में यहाँ घूम सकते हो, वहाँ घूम सकते हो, होटल मिलेंगे रहने को, ये वो मिलेंगे, बट वो फ्री में मिलेंगे। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वैसे भी अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा मेरे 12 पास जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हाँ हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, प्लीज मत करो। या तो आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, साइड बाय साइड हायरिंग को देखो। अगर हायरिंग हो रही है तो वेल एंड गुड, गो अहेड एंड गेट योर सेल्फ applied, registered, and do your interviews. If not, then you still have backup, like you're just completing your study. Unlike me, मैंने अपने 12 के बाद ही अपना फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। लकीली आई गॉट सिलेक्टेड, और मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, जिन्होंने 2-2 लाख या 1-1 लाख भरने के बाद भी उनको 16-16 हज़ार पेमेंट वाली सैलरी जॉब मिली है, जो कि ग्राउंड हैंडलिंग जॉब है। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि कोई कोई डायरेक्ट स्टाफ बना है ग्राउंड जॉब में, कोई कोई नहीं बना है। सो after paying so much and you're just getting paid 18,000, then I don't think so it is worth your money. We cannot sell career, or we cannot sell knowledge. Rather, I can just do a favor and help you out in every terms. So for the next video I will be sharing more important things related to this job. Please do not get demotivated. I just want you guys to know the reality, then the glamour part, then the process, whatsoever will happen, what will happen after you clear the interview, happens during the training. Everything I will be covering in my upcoming videos, so do not skip it. Apart from that, if you have still watched the video and already made up your mind that yes, you can face all of this just like how I am doing right now, so you are really strong, you have already won the battle. I bet you will go ahead, trust me, because इतना सब कुछ अगर आपकी बॉडी झेलने के लिए रेडी है, आप इतने स्ट्रांग हो, तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। बस आपको आपके अपने ऊपर काम करना है। अगर आपकी वेट में बहुत मतलब वेट ज़्यादा है तो आप उसको कम कीजिए, कम है तो बढ़ाइए, और अच्छी डाइट लीजिए, और क्या क्या स्किन केयर, क्या क्या मेकअप आपको रिक्वायर हो सकती है इस फील्ड में आने के लिए, इन सब के बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।